آغاز میں آپ کو بتائیں صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت آج اہم اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ اعلیٰ عسکری قیادت اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اجلاس میں ایران امریکہ اسرائیل جنگ اور اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ خلیجی ممالک پر حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس پر اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں ملک میں موجود پیٹرولیم ذخائر اور ترسیل کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ کفایت شاری پالیسی اور اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ اور ممکنہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور دیگر اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے صوبوں کی تجاویز پر بھی غور ہوگا۔ موٹر سائیکل اور رکشہ ڈرائیورز کو سبسڈی سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران میں حکومت تبدیل ہو گئی، جلد معاہدہ طے پانے کی امید ہے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا پاکستان کے ثالثی سے مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ امریکہ اور ایران میں ڈیل کے امکانات روشن ہیں، لیکن ایران کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ ہم مذاکرات کرتے ہیں اور پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ Moving along very nicely. The Navy's gone, the Air Force has gone. We destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. But you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. We agreed to send 8 boats 2 days ago and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ ایران کے تیل کو قبضے میں لے سکتا ہے، خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا ایرانی اسپیکر باقر قالباف نے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ ایران کے مجھے تحفہ دینے کے بیان پر کئی لوگوں نے شک کیا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو سب خاموش ہو گئے۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری کارروائیوں میں بڑی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ایران میں 13,000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، متعدد اہم اہداف تباہ کر دیے ہیں، اب تقریباً 3,000 اہداف باقی ہیں، لیکن ایران سے نسبتاً جلد ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے عسکری کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ کارروائی کے تحت امریکی افواج کو کئی دن ایران میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ابھی تک اس آپریشن کی منظوری نہیں دی۔ امریکہ مذاکرات کے لیے افسردہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اس آپشن کے لیے عمومی طور پر آمادہ ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور پرخطر مشن ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے مشرق وسطی میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اخبار نے اپنے رپورٹ میں بتایا 1 ماہ کے دوران مشرق وسطی میں امریکی فوج کی تعیناتی میں 10,000 کا اضافہ ہوا۔ امریکی بحریہ اور میرین کور کے 3,500 اہلکار پہلے ہی تعینات ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ دفاع نے 2,000 ایلیٹ فوجیوں کو بھی خطے میں بھیج دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کسی زمینی جنگ میں برتری کے لیے یہ تعداد ناکافی ہے۔ 50,000 فوجیوں کے ذریعے نہ تو ایران پر مکمل قبضہ ممکن ہے اور نہ ہی طویل عرصے تک کنٹرول برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان آئندہ دنوں میں امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ امریکہ اور ایران نے مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کرنے پر خوشی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان فریقین کے درمیان بامقصد مذاکرات کی سہولت کاری کرے گا۔ امن کے لیے مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے فخر کے باعث ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد خطے کی صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ ساری دنیا پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بیجنگ نے پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کی مکمل حمایت کی۔ Bilateral meetings with 3 foreign ministers, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. The foreign ministers reaffirmed unity to contain
the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों को नागुज़ीर करार दे दिया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। कहा, जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी फोर्सेस इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल की बेरशेबा केमिकल फैक्ट्री तबाह हो गई। 13 अफराद जख्मी हुए। फैक्ट्री से जहरीले मवाद के खराज का खदशा है। IDF का कहना है जनूबी इसराइल के सनती जोन में मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग भड़क उठी। ईरान ने जनूबी इसराइल पर भी मिसाइल दागे। खतरे के अलार्म बज गए। इसराइली फौज का कहना है हैफा की जानिब आने वाले 5 रॉकेट्स को तबाह कर दिया। एलात में यमन से आने वाले 2 ड्रोन्स मार गिराए। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने शहरी इलाकों पर हमलों के जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया है। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमरीकी और सेहूनी हुकाम के रिहायशी मकामात को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियां भी जायज़ अहदाफ होंगी। इसराइली फोर्सेस ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की है। IDF का कहना है तेहरान में मुतअद्दिद अहदाफ पर हमले किए, फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। शहर में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया का कहना है रे शहर में भी धमाके हुए हैं। फॉक्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तबरेज़ पेट्रोकेमिकल प्लांट में हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ईरानी वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बायस सिर्फ तेहरान और अलबर्ज के बाज़ इलाकों में बिजली मुअत्तल है। ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। IAEA की ईरान के खंदाब न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक। IAEA ने सैटेलाइट तस्वीर के तज्जिए से हैवी वाटर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचने का इंकशाफ किया। कहा, ईरान का खंदाब प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं रहा। 27 मार्च को ईरान ने तनसीब पर हमले की इतला दी थी। प्लांट में कोई जौहरी मवाद मौजूद नहीं था। हमले के बावजूद किसी ताबकारी खतरे की इतला नहीं। खंदाब तनसीब ईरान के जौहरी प्रोग्राम का अहम हिस्सा रही है। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के हमले जारी हैं। सऊदी वजारत दिफा का कहना है गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान 5 ड्रोन्स मार गिराए गए। मशरकी सूबे में 5 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने भी 5 ड्रोन्स तबाह करने की तस्दीक की। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। कुवैती वजारत बिजली ने बताया बिजली और पानी की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक दुबई और बहरीन में खतरे के सायरन बज गए हैं। इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मंजूर कर लिया गया। इसराइली पार्लियामेंट ने 2026 के लिए $271 बिलियन का बजट मंजूर कर लिया। इसराइल के दिफाई अखराजात रिकॉर्ड $45.3 बिलियन तक पहुंच गए। इसराइली पार्लियामेंट ने दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफे की मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर ने नए बजट को इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई अखराजात के बाद बजट खसारा GDP का तकरीबन 5% तक पहुंच गया। ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अहम तनसीबात पर हमले का मंसूबा नाकाम बनाकर 30 गैर मुल्की दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ सूबों में हसास इदारों ने खुफिया ऑपरेशन के दौरान असलहे की बड़ी खेप बरामद कर ली। दहशतगर्दों से जदीद हथियार, मवासलाती आलात और जंगी सामान बरामद किया। दहशतगर्द बड़े पैमाने पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे जिनका ताल्लुक गैर मुल्की नेटवर्क से है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। और खबर देंगे आपको, अमरीकी अवाम इसराइली फर्स्ट पॉलिसी से नाराज हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्वीट। कहा, अमरीकी शहरी हुकूमत करने वाले इसराइली बादशाहों से उकता चुके हैं। अमरीकी AI माहिरीन को चाहिए ट्रंप को नो किंग्स एहतजाज में अमरीकियों की शिरकत के हकायक से आगाह। UAE के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद की शहरी अमलाक पर हमलों की मजम्मत। खित्ते में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने को संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा, स्कूल्स, अस्पताल, एयरपोर्ट्स और रिहायशी इलाकों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी किसी सूरत जायज़ नहीं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जंग का मैदान नहीं। UAE के वजीर खारजा ने तवानाई तनसीबात और बंदरगाहों को निशाना बनाना, आलमी मईशत के लिए खतरा करार देते हुए फौरी जंग बंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया।
जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा किसी भी मुमकिन माहिदे में अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी कहती हैं ईरान पायदार अमन का ख्वाहां है, लेकिन मुज़ाकरात में आबना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और पाबंदियों का खात्मा कलीदी निकात हैं। मौजूदा हालात में आबना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अमन या जंग का हतमी फैसला रहबर मौज़म के इख्तियार में है। जब तक नुकसानात का अजाला और पाबंदियों का खात्मा नहीं होता तब तक पायदार अमन मुमकिन नहीं। इसराइल को ईरान पर हमलों को ख़त्म करने के लिए दबाव का सामना है। इसराइली टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी के ऑप्शन को आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका ने मुमकिन मुज़ाकरात की इजाज़त देने के लिए चंद दिनों में जंग ख़त्म करने पर जोर दिया है। इसराइल मुआहदे के बजाय ईरान में अमेरिकी ज़मीनी कार्रवाई चाहते हैं। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयों की मुहिम चंद दिनों में ख़त्म हो सकती है। इसराइल पर अगले 2 से 3 दिनों में जंग समेटने के लिए दबाव बढ़ रहा है। जंगबंदी का मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात शुरू करना है। ईरान से जंग क्यों कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर ट्रंप से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने और सूरत हाल में बेहतरी पर जोर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात की दिफा के लिए तैयारे तो भेजे, लेकिन आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी अफवाज भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का आवाम पर बोझ कम करने के लिए 2 रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। विक्टोरिया में 1 अप्रैल और तस्मानिया में 1 जुलाई से ट्रेनें, ट्रैम, बसें और फेरीज में आवाम को मुफ्त सर्विस फराहम की जाएगी। More certainty in what the objectives of the war are, and I want to see a de-escalation. So a de-escalation is in the global economy's interests. Today we're announcing the Commonwealth Government will halve the fuel excise on petrol and diesel for 3 months. The halving of the fuel excise will reduce the cost of fuel by 26.3 cents per litre. Importantly, in addition, states and territories have agreed and are finalising a proposal to ensure they won't benefit from the elevated prices that are occurring because of the GST. This is a reason for why we did this through the National Cabinet process rather than just going out there and making announcements without that necessarily being thought through appropriately. So we're working through the mechanisms with states and territories, and we'll have more to say about that in a short period of time. बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.38% इजाफे से $115.28 फी बैरल हो गई। इसी तरह वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.5% महंगा हुआ, जिससे इसकी कीमत $101.19 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया ये बताता है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बाद से अब तक खाम तेल की कीमतों में 59% इजाफा हो चुका है। एशियाई स्टॉक मार्केटें भी आज कारोबार के आगाज से ही गिरावट का शिकार हैं। टोक्यो के नकाई इंडेक्स में बड़े पैमाने पर हिस्स की फरोख्त देखी गई, 5% मंदी देखी गई। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स 4%, जबकि शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.5% तक गिरावट का शिकार रहा। मुंबई इंडेक्स सेंसेक्स में 1%, जबकि निफ्टी 50 में 1.5% कमी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आगाज से ही मंदी देखी जा रही है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,46,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया है। दौरान कारोबार 7,050 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। करेक्शन के बाद 5767 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 1,45,940 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन ये कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के सबब सरमायादारों ने मोहतात रवैया इख्तियार कर रखा है। बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने हिस्से फरोख्त कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $50.02 इजाफे के साथ $4,545 का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन चांदी $1.17 इजाफे से $70.74 की हो गई। इसराइली पुलिस ने यरूशलेम के लातीनी पेट्रियार्क यानी ईसाइयों के आला पेशवा को पाम संडे की इबादत से रोक दिया है। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इसराइली पुलिस के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की और उसे मजहबी अक़ीदत रखने वालों की तौहीन करार दिया। कार्डिनल पियर बातिस्ता पेज़ा बाला
पाम संडे की खुसूसी इबादत में शिरकत के लिए चर्च जा रहे थे कि इसराइली पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। कैथोलिक चर्च के सरपरस्त पादरी फ्रांसिस्को लेल्पो को भी उनके साथ थे, उन्हें भी चर्च में दाखिल नहीं होने दिया। इस मामले पर इटली ने इसराइली सफीर को तलब करके बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फ्रांस के सदर ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। मैक्रॉन की जानिब से कहा है बैतुल मुक़द्दस में तमाम मज़ाहब के लोगों को बिला रुकावट इबादत की आज़ादी दी जाए। दादू में उमर रबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के तहरे कत्ल केस का फैसला आ गया। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। बरी होने वालों में पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली नवाब सरदार खान चांडियो और उनके भाई बुरहान खान चांडियो शामिल हैं। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने 8 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए नामजद नवाब सरदार खान चांडियो और उनके भाई बुरहान खान चांडियो समेत 8 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। बरी होने वालों में मुर्तज़ा चांडियो, अली गौहर चांडियो, सिकंदर चांडियो, जुल्फ़िकार चांडियो, सतार चांडियो और SHO अब्दुल करीम चांडियो भी शामिल हैं। फैसले के बाद उमर रबाब चांडियो ने रद्द अमल में कहा, सरदारों को लाइसेंस मिल गया है कि वो जिसे चाहे कत्ल कर सकते हैं। त सरदारनि खे हिकिड़े क़िस्म जो लाइसेंस मिलियो आहे त तव्हां जंहिंखे चाहियो जीअं चाहियो जिथे चाहियो क़त्ल करे सघो था ऐं तव्हां खां केरु पुछण वारो न आहे। हीउ फ़ैसिलो मुंहिंजे घर ताईं महदूद न हुयो, हीउ फ़ैसिलो समूरी सिंध सॼे मज़लूम तबिके जो फ़ैसिलो हुयो। असांजा हौसला बुलंद आहिनि, असांजे हौसलनि खे अञा हिकिड़ी नई उड़ान मिली आहे हिन फ़ैसिले सां। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ताईं वेंदासीं ऐं पुरुमीद आहियूं त इंशाअल्लाह असां इंसाफ़ जेको असांजो हक़ आहे वो वठ। क्लिफ्टन जमजमा पर निजी स्टोर में लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान की जानिब से कहा गया, मुसलसल धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल खान, वहां पर मौजूद हैं। अफजल, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या बताया जा रहा है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त 5 मुख्तलिफ मुकामात से जो फायर फाइटर्स हैं वो इस मुतासरा इमारत के अंदर दाखिल हुए हैं और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। स्नॉर्कल की मदद से भी जो है वो पानी फेंका जा रहा है, फोम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तकरीबन 10 गाड़ियाँ जिसमें KMC, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ और एहलकार भी मौजूद हैं, वो आग बुझाने की कोशिशों में जारी है। सुबह 5 बजे ये आग लगी थी और उसके बाद इब्तदाई तौर पर जो स्टोर के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ख़ुद भी आग बुझाने की कोशिश की और 6 बजे के करीब जो है वो जब इतला मिली तो उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दिगर जो अमला है वो यहाँ पर पहुँचा और अब तक जो है वो आग पर काबू नहीं पाया गया है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है। धुआं ज़्यादा होने की वजह से ही जो फायर फाइटर्स अंदर गए हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मुकामात पर दीवार को महज इस वजह से भी तोड़ा गया है कि उसमें हवा जा सके और उससे धुएं का अखराज हो सके, लेकिन अब तक जो है वो सिर्फ धुएं की वजह से आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने में मुश्किलात का सामना है। ताहम फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत इस आग को मज़ीद फैलने से कम रोक दिया है। अब इर्द गिर्द की इमारतों तक आग नहीं पहुँच सकती, लेकिन जो इमारत है उसके पहले और दूसरे फ्लोर पर भी आग की शिद्दत कम हो गई है और बेसमेंट के अंदर जो है इस वक्त जहां पर आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अफजल खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका क्लिफ्टन में डिपार्टमेंटल स्टोर में आतिश ज़दगी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जाए वक़्त पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमारत से 25 के करीब लोगों को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन इसलिए बनाया ताकि मुहर्रिकात की जाँच पड़ताल की जा सके। नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। 24 से 25 अफराद बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। यह सुबह का वक्त था, प्रिपरेशन चल रही थी, तो कोई कस्टमर या कंज्यूमर नहीं था, सिर्फ दुकान की अपनी इंतजामिया के, मार्केट की इंतजामिया के लोग थे। तो बरवक्त तौर पर हम निकालने में कामयाब हो गए। आग को बाय एंड लार्ज काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुआं है, स्मोक का फैक्टर है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। इसको अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऊपर के जो रास्ते हैं उनको ग्रिल्स को निकाला गया है ताकि जो स्मोक है वो बासानी बाहर निकल सके और वो बिल्डिंग के अंदर ना फंसे। अभी टारगेट ये है जो रेस्क्यू का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाए ताकि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो तहकीकात और तफ्तीश करने की ज़रूरत है वो इंशाअल्लाह की जाएगी। हुकूमत ने गुल प्लाजा वाक़ये के बाद उसका जुडिशल कमीशन इसीलिए बनाया था ताकि इस तरह के जो भी मुहर्रिकात हों उसकी जांच की जा सके। और बाकी शहर भर में हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने, हमारी फायर टीम ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट का अमल था वो किया है और जहाँ जहाँ इस तरह की कमी कोताहियाँ थी उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। सदर के इलाके को सील किया था यही फायर सेफ्टी के आलात ना होने की वजह से। तो जब हमने सील किया तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की। एबटाबाद हवेलिया के गांव
हाजिया गली में बारिश से मकान की छत मुनहदम हो गई है। मलबे तले दबकर 3 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है रेस्क्यू टीमों ने जख्मी और लाशों को मलबे से निकाल लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। बन्नू लकी मरबत नौशहरा में कच्चे घरों की छतें गिर गईं। PTMA का कहना है छतें और दीवारें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हुए, 47 जख्मी हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए नया AI टूल मुतारिफ करा दिया है, जिसे राइटिंग हेल्प फीचर का नाम दिया गया है, जो गुफ्तगू के सयाक सबाक को पढ़कर जवाब को ड्राफ्ट कर सकता है। इस इकदाम के बाद व्हाट्सएप भी एप्पल और गूगल की तरह AI से लेके जवाब पेश कर सकता है। अब तक इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।